Okay, now welcome. So I am Aswani Yadav and I've done MTech from IST Renewable Energy, and again welcome. So I would like to recall you what we have studied in earlier classes. I can give you something in summary or in brief way, like let me write V2 minus V1 work external from 1 to 2. This is charge E dot dr 1 to 2. Okay, so this is the exact relationship we have established at, whenever just use this and take this formula for your interest. You can find the electric field then when potential difference, potential variation is given in the space. It may be given in the function of x, y and z. Then you can find the electric field variation in the space. Also you can find work done. Okay, I can also use the Gauss law here ahead. Del in differential form, del E by del X. This is distribution of charge density in a space, or I can say in x coordinate, because I have taken the variation of electric field in x coordinate, and this is the Gauss law. Okay, so we have enough equipped with our tools to solve any problem we are given to. So I would like to continue with some numerical problems. Now suppose, question, find the potential difference between a point A, its coordinate is 0, 0 and 0, and point B, its coordinate is 1 meter or in meter, in an electric field. Electric field is given, and we have to find the potential difference. Electric field. And in case 1, when electric field is given as function of coordinate, a space coordinate xj, volt per meter, and case B is equal to 3x squared y I plus x cube j volt per meter. Okay, this is your question. Okay, so you can use this relationship. I can write this like dV minus dV, you can write E dot dr. Okay, so I would like to use this. Okay, so potential difference. Now I can write minus dV. You just electric field is given in y coordinate I plus xj, and dr in Cartesian coordinate I can write this dxi and drj. This is your coordinate system. So dr I can write like this, and this is in Cartesian coordinate. So now we have dV is equal to y dx plus
x dy. Just use this dot product. So minus dv, and this is differentiation of x, y. Maybe some constant can be added. Integrating both the sides, minus v is equal to xy. So this is a function of potential. Okay, electric field is a vector quantity. It is given like this, and potential is a scalar quantity. It is also a function of a space coordinate. Now I can write v is equal to minus xy. Then the potential difference between this point and this point. We just put the coordinate. So at A, v is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0. At B, we have minus 1. So what do we have to find? Potential difference between A and B. Then VA minus VB, 0 minus 1, we have 1. This is your potential difference. Okay? Just find the equation of potential. This is a scalar one. Just differentiate it. You can do this reverse process. Use the reverse process. Just differentiate it. You can find the electric field. You can do the same for this one. Let us do this. We have electric field is equal to 3x square y I plus x cube j volt per meter. Okay, you can again write that in the same way. E dot vector dr, then I would just can do the directly dx plus x cube dy. We have x cube y, and differentiation of the x cube y will give this quantity, and minus dv. On integrating both the sides, you will find minus x cube y. Again put 0, it will be 0, 1, it will be 1, then VA minus VB, again it is 1 volt. So once यदि आपको पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. ये रिलेशनशिप है आपका. अर्लियर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर वे में पढ़ रहे, जैसे वेक्टर है, इसका यूज जो होगा आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, और हम चाहते हैं कि इजी वे में हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि ये पोटेंशियल है, स्केलर है, इसका लैप्लास हो सकता है. इसका पॉइसन इक्वेशन हम डेवलप करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं. यदि आपकी पोटेंशियल निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं. सिंस आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए. जो अक्सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बेसिस कैसे होगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं. चलिए इस यहां तक तो काफी आसान है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो आप देखिए कि पोटेंशियल फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्केलर है, और स्केलर से हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएट करके इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड इजीली कर सकते हैं. तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है. देखिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. 12th स्टैंडर्ड में बस हम इसे सिंपल ही पढ़ेंगे और यूरोप सॉल्व करेंगे. तो ओके, okay, just I want to
tell you one thing, that if you know EDL, you find this integration. If you carry out this integration for closed like this, for closed path, what will you get? That is, if you start your journey from this point, you again come to this point, same point. So you have come 1 and 2 are coinciding to one point. Then V2 minus V1 vector E dot. So V2 minus V1 E dot dl. It is going to be 0 because these differences, you're not getting any difference, because at same point difference is going to be 0 because both are same. At 1 V2 is equal to V1. You make your journey like this and come to this point. You can transverse in other path too, but again E dot dl is going to be 0. What does this indicate? You find when E dot dl for closed path is 0, you are getting this as a conservative field. Its curl is 0. This means its curl is 0. Okay, this is integral equation for curl. Okay, so you don't know what a curl it is. Okay, for 12th level पे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है. पर कर्ल मतलब होता है रोटेट. कर्ल मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेटिंग नहीं है. कर्ल, इसको कर्ल मतलब मूव करना. कर्ली हेयर आप जैसे जानते हैं कर्ल, तो ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है. हमारे पास जो फील्ड है वो एक पॉइंट चार्ज है उससे निकल रहा है, इस तरह से है, स्ट्रेट जो चला जाएगा. इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं. या तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेट लाइन में ही होगा. ठीक है, इनवर्ड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो, या यूनिफॉर्म हो सकता है. इसके वेरिएशन स्पेस नहीं है, पर ये राउंड नहीं होगा. इसका फिजिकल मीनिंग है. ओके, तो आप राउंड नहीं है, इस नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको है. कोई चार्ज दे दिया जाए, आपको पता करना हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा. तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप राउंड यदि आप ट्रांसवर्स करते हैं, ओके, तो आपका E डॉट dl 0 आएगा. और ये इसके शेप पे डिपेंडेंट नहीं है. किसी भी शेप का हो आदि पाथ, आप किसी भी तरह से आप इस पॉइंट पे आते हैं, जर्नी यहां शुरुआत करते हैं, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आप जर्नी कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे Q चार्ज है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा. ओके, तो ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कि यह कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल ऑपरेशन, E डॉट dl कर ले या कर्ल निकाल ले. इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल निकाल सकते हैं. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया रहेगा, आप बस डॉट dl कर ले और उसी पॉइंट पे चले जाए जिस पॉइंट से आप शुरुआत किए हैं, तो आपको 0 मिलता है. तो आप कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है. और ये कहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन. ओके, दिस विल बी 0 and this is 0 independent of location of charge Q. Independent of location of charge Q. Q कहीं भी हो सकता है. ओके, तो आप रेडी हैं ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है. ओके, जब कंजर्वेटिव फील्ड आपको मिल जाता है, तो यहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अल्टीमेटली आपको अधिकार है वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करने का. वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके आप फोर्स को खत्म कर देते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे डील करना काफी टफ होता है किसी भी सिचुएशन में. हम चाहते हैं कि मेरे पास आसान तरीका हो, तो आप वर्क हम निकाल सकते हैं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. कंजर्वेटिव फील्ड में होगा, ये जो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी के खर्च होने पर होगा, इसलिए नेगेटिव है. एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क इज डन. दिस इज बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, तो यदि हम
ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि यदि ये कंजर्वेटिव है तो ये रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एनर्जी आगे पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट पे इसे एनर्जी क्या है। ओके, और जो हम पहले इस फॉर्मूला को देखे थे उसी फॉर्मूला से हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब वर्क डन हम लोग पोटेंशियल पढ़े हैं, एनर्जी निकल सकता है क्योंकि वर्क डन की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी रख देंगे तो Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हम कर सकते हैं, हमारा एनर्जी निकल जाएगा। ओके, तो लेकिन ये आपको कर निकालना पड़ेगा, पर कर निकालने के लिए आपको जानना नहीं है। अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड के पास है। Okay, just stick to the basic equations. Only one equation we have. Okay, you just know how to treat it. You can solve any problem. Okay, this is a beautiful thing. IT demands you how to think analytically, how to think, how your aptitude is. आपका aptitude कैसा है? इसे हम थोड़ा और खेल लेते हैं। इसे VdB हमारा क्या था माइनस E डॉट ds. ds is displacement in electric field and E is the electric displacement in electric field and E is the electric field. Okay, this is displacement and E is electric field. Suppose कि आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हम लोग जानते हैं इक्विपोटेंशियल मींस इक्यू बस सेम पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे सेम है, मतलब यहाँ किसी भी पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं तो पोटेंशियल सेम है और यहाँ पे अलग है, पर इस लाइन पे पोटेंशियल सेम है और यहाँ पे अलग है पर इस लाइन पे पोटेंशियल सेम है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इस लाइन पे पोटेंशियल सेम है, मतलब यहां से यहां ट्रांसवर्स करने पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा? यदि यहां से यहां पे ट्रांसवर्स करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल 0 है मतलब E डॉट ds क्या है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब हम इधर ट्रांसवर्स किए हैं ds तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to ds, and I mean to say that electric field is perpendicular to equipotential line. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चल गया कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो हम वेरिएशंस इसे फिर से आप देखते हैं, ट्रिक करते हैं दोबारा। लेट अस डू दिस अगेन सम गेम। नाउ वी हैव dv इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट ds। व्हाट इज दिस मीनिंग? माइनस dv इक्वल टू E ds cos theta and minus dv by ds is E cos theta। मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, थीटा एंगल है ds, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में जो वेरिएशन है E cos थीटा तो क्या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा और वो होगा dv by ds। ओके, सो आप इस dv by ds का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? dv by ds आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये cos 0 डिग्री होगा। ओके, जब E होगा when थीटा इज
0 डिग्री, मतलब आपका पोटेंशियल का वेरिएशन मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन, इस डायरेक्शन में। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिस उस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल का ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा। आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट घटते जाएगा, और जब आप थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं तो पोटेंशियल बिल्कुल घटना बंद हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, सो देखिए, बस इसी इक्वेशन को ट्रिक कीजिए और इसी इक्वेशन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाइए, बहुत आसान है। बस स्टिक टू द बेसिक्स, जस्ट स्टिक टू दिस फॉर्मूला। So this is the directions of maximum variation of the potential, that electric field perpendicular to the equipotential surface. And this may have potential V1, V2, V3, V4 respectively. Okay, इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक ही फॉर्मूला है जी, उसी फॉर्मूला से आपको ट्रिक करना आना चाहिए, मॉडिफाई करना आना चाहिए, खेलने आना चाहिए। आईटी जाता है बस खेलो, मेडिकल जाता है बस खेलो, तुम्हें बहुत जानना नहीं है विधवा, इसमें तुम्हें लोगों कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस बेसिक जानना है। देखो सिर्फ बेसिक ही है। तो क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as one moves on the x axis from x is equal to -1 centimeter to x is equal to +1 centimeter. What can be said about the electric field at origin? This is your question. ये आपका क्वेश्चन है। तो वन फॉर्मूला जो हमारे पास है, ई आर माइनस dV/dr, जो हमारे पास कितना है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 120 to 80, मतलब -80 -120, और कहां से कहां तक है, 1 से -1 तक। We have minus positive 40 to 20 volt per centimeter. This is in this direction of x. मतलब ये 120 वोल्ट है, यहाँ पे 80 वोल्ट इस डायरेक्शन में आपको मिला है, यहाँ पे ऑरिजिन होगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। पर ये क्या हो सकता है, आपको पता है कि ये ई कॉस थीटा का वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जरूरी नहीं है। हम कुछ दूसरे डायरेक्शन में फाइंड करें dr। तो पता है कि जब इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर सरफेस पे हम लोग नहीं मूव किए हैं dr, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जनरलिटी को मेंटेन करते हुए हम लिख सकते हैं e cos थीटा। विदाउट लॉसिंग द जनरलिटी यू कैन रेली राइट e cos थीटा इज इक्वल टू 20 volt per centimeter, and cos theta is less than equal to 1. So cos theta is less than equal to 1. The electric field will be equal to 1 or greater than this much. Sorry. So E is equal to or greater than 20 volt पर सेंटीमीटर, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा,
1 लिखते हैं 20 होगा, ठीक है, उससे इक्वल होगा, उससे ज्यादा होगा। हाफ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इसका हाफ लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 कर दो, ठीक है। देखो E/2 बराबर 20 करते हैं तो E बराबर 40, ओके। तो इससे ज्यादा होगा, इसके बराबर होगा। देखो अब हम लोग आ गए हैं स्केलर पे, पोटेंशियल पे। इसका बहुत महत्व है आगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे, जब हम लोग डेविड ग्रिफिथ सॉल्व करेंगे, आप लोग आईटी का नहीं पढ़ना है, पर हम वहां तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम पोटेंशियल स्केलर, सॉरी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है, जहां पे हम आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड वन क्वेश्चन, दिस इज V is equal to x y square minus 4x square, ये आपका पोटेंशियल वेरिएशन दिया हुआ है, और इसका मतलब दिया हुआ है x y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो पोटेंशियल दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो कोऑर्डिनेट में होगा। तो हम लोग Ex निकालना चाहें तो कर सकते हैं माइनस डेल V बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां माइनस है 12x स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली आप इसे y से डिफरेंशिएट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2xy मिलेगा, ठीक है। बस ये तो जीरो हो जाएगा कि x है, तो ई वाई माइनस 2x। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ये है आपका। देखो सिर्फ बेसिक ही समझना है। ये देखिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस में y o x, और देखिए ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे 10 है, और ये 20 है, ये 30 है, 40 है, और इस तरह से आपका पोटेंशियल, ये 10 वोल्ट, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। आपको पता है इक्विपोटेंशियल मतलब जहां पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट में, सॉरी पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो, डिफरेंस है 0, और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर से उसी तरह से पैरेलल है, फिर से 30 डिग्री है, और यहाँ पर 20 दिया हुआ है, फिर से इस तरह से 30 दिया हुआ है, फिर से 30 डिग्री, ओके। और ये दूरी कितना हो गया आपको 10, ये दूरी आपका कितना है 10 है, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट दिया तो सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है what can you see about the magnitude and direction of electric field? What can you see about the magnitude and direction of इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आपका क्वेश्चन है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पता है आपको, हम लोग लिख रहे हैं माइनस डेल वी बाई डेल एस बराबर ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब आगे बढ़ेंगे डीएस को पॉजिटिव करते हैं। देखिए जैसे बस छोटी बातें कोई समझना होता है, छोटी चीज समझते हैं, डीएस आप पॉजिटिव करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जब आप मूव करेंगे डीएस स्मॉल डिस्टेंस, तो आपको निगेटिव आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इधर है, उधर पोटेंशियल घट जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा क्योंकि पोटेंशियल घटना चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो आपका जो डायरेक्शंस है इस तरह से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस है,
और इधर नहीं होगा क्योंकि इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर होगा क्योंकि पोटेंशियल इधर बढ़ रहा है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं E बराबर E, ये डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये इसे D मानते हैं, तो ये 10 है, तो मतलब 10 sin 30 10 cos 30, ये क्या है आपका 10 cos 30। इधर नहीं जाना है हम लोग, इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना है। तो हम कितना मूव करेंगे 10 sin 30, और इधर पोटेंशियल वेरिएशन कितना है 10 है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल वेरिएशन 10 है, और कितना हो गया 5 सेंटीमीटर है। तो आप इसे लिख सकते हैं, जब मीटर में चेंज करेंगे तो 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 200 वोल्ट पर सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो पर 200 वोल्ट पर मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बस आपको बेसिक आना चाहिए, बस बेसिक्स, ओके। बस इसी को फॉर्मूला से ट्रिक करो, यू कैन कन्वर्ट एवरीथिंग। तो फिर से v बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, और सेकेंड केस में ए एक्स वाई दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको आसानी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के एक्स वाई दिया हुआ, भी दिया हुआ है, तो बता सकते हैं कि फील्ड का पैटर्न क्या होगा। बस इसे आप डिफरेंशिएट कर दें, आसानी से आपका निकल जाएगा। अब ये केस देखते हैं, जब पोटेंशियल माइनस के एक्स वाई दिया हुआ तो फील्ड पैटर्न क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ई एक्स हमारा क्या होगा, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दें, माइनस के वाई, और ई वाई क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है। ई वाई इक्वल टू के एक्स। तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल आपका थीटा हो जाएगा, और ये वाई है, ई एक्स से टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका ई वाई by ex, and this is equal to y x. And you know that just simple mathematics, because I want to find the field pattern equation of the field, so we can use differential equations. Tan theta is equal to dy by dx. Okay, dy by dx is the slope, and now we have yx so we can write ey by ex is equal to xy, sorry xy. So now we have y dy minus x dx is equal to 0. Integrating both sides, we have y square minus x square is equal to 0. And ये हाइपरबोला का फॉर्मूला है आपका, क्या है ये हाइपरबोला, हाइपरबोला। और इसका फील्ड पैटर्न कैसा होता है, आप 45 डिग्री ड्रॉ करें इसके, इसी डोमेन में ही होगा इस तरह से, ये पैराबोला के इक्वेशन है, बस इसी तरह से होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका इधर उल्टा होगा और इसका इधर उल्टा होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
apparent. This is hyperbola. Okay. One more questions I would like to give to you. The potential in electric field varies as b is equal to minus x square plus b. This is in a space x quadrant. Now find charge density rho x in a space. ठीक है, आपका पोटेंशियल वेरिएशन दिया हुआ है, तो क्या आप चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है निकाल सकते हैं? फोर्स आप निकाल सकते हैं। अभी हम गॉस लॉ देखे थे, उसका यूज करेंगे। ये पोटेंशियल दिया, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस का जो रिलेशन है वो यूज कर सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन। देखो सिर्फ बेसिक है, सिर्फ बेसिक को ट्रिक करो, बेसिक को ढूंढो क्या यूज करना है, बस वेरी सिंपल। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तुम्हारा क्या आ गया? माइनस, पहले से माइनस है क्या? माइनस है, तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 2ax। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डेल ई बाई डेल एक्स, तो हमारे पास है 2a। तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया? 2a इप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है, देखो सिर्फ बेसिक आना चाहिए आपको। सिर्फ पोटेंशियल जो दिया हुआ है, पोटेंशियल जो आपका दिया हुआ है स्पेस क्वाड्रेंट में, उसके आप यूज कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप डाइवर्जेंस निकाल दें, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड दिस चार्ज डेंसिटी। Okay, at a point, this is the variance in the space, and this is at a point where you want to know. So at a point in the field, you just operate this divergence. Okay, आपको डाइवर्जेंस हम लोग देखेंगे किस किस क्वाड्रेंट में है। ये आपका इजी है, आप आईटी के लिए तो आसान है, बस आईटी के लिए बस यही जानना है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। I will solve, of course, David Griffith. It is a very good book, David Griffith. तो 3 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आसानी से सॉल्व कर देंगे। पीएचडी में जो क्वेश्चन पूछा है उससे बता देंगे आपको, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है माइनस 2x y प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका एक्स क्वाड्रेंट में है, आई एक्स डायरेक्शन में है, और 2yz प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 2z
टू जेड एक्स वाई स्क्वायर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। द क्वेश्चन है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड in taking a unit charge from 000 to 340 along the straight line। अब क्या होगा? और यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप आपका स्फीयर बनाते हैं, नेट चार्ज enclosed in a sphere of radius 5 unit centered at origin। ओके, ये ऑरिजिन है, सेंटर। इसमें चार्ज इंक्लूड कितना होगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से दिया हुआ है और बर्गन निकालना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बर्गन कैसे निकाल सकते हैं? आपका यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डिस्प्लेस करेंगे ऑरिजिन से 340 तक, तो आपका बर्गन क्या होगा? देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका EX -2XY सॉरी माइनस तो आपका पोटेंशियल कितना होगा? यदि हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, आपको यदि हम पोटेंशियल का फंक्शन निकाल लेते हैं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन है आप लिख सकते हैं Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका EX ये दिया हुआ है एस कंपोनेंट और EY ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका जो है वो 0 से 3 4 तक है, ठीक है। तो जेड कोऑर्डिनेट का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके कारण हमको नहीं दे सकते, क्योंकि हमको दो ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एप्लीकेबल है। तो EX जो है हमारा 2XY प्लस जेड स्क्वायर, then EX is equal to minus del V by del X। तो del V बराबर होगा हमारा माइनस है, तो 2XY प्लस
जेड स्क्वायर dx पॉजिटिव हो जाएगा कि माइनस यहाँ पे, तो डेल v इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2y प्लस जेड स्क्वायर x. Now we have x square into y plus z square into x. Again find this for this one. We will add together, but the total potential will be just add because it is scalar. You can add directly. Now v और नेगेटिव so y से डिफरेंशिएट कर दें, sorry integrate, then you will get 2z y square by 2 plus x square y. Now we have z y square plus x square y. Then you have total potential x square y plus z square x plus z y square plus x square y. आपको कोई मिस्टेक नहीं हो गया, यू जेड स्क्वायर इस स्क्वायर, ठीक है. तो अब हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड वाई स्क्वायर. यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हमारा पोटेंशियल 3 4 पे क्या है, 2 इंटू एस की जगह 3 9 एक्स कितना था आपका 3 एंड वाई इक्वल टू बाहर हल्ला होने लगा, डिस्टर्ब हो गया. 2 इंटू 3 सॉरी इट इज 4 मिस्टेक नहीं हो गया क्या, क्या लिखा हुआ 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर, हम वाई से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, वहां पे करेंगे एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई. अब कितना आ गया 72. अब 0 पे तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि सभी हम सभी 0 पुट कर देंगे. देखिए गलती क्यों नहीं, 36 आंसर आ रहा है, आंसर 36 है, देन कोई गलती क्यों लिख दिए. 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस एक्स स्क्वायर टू जेड वाई प्लस डी वाई, तो के वेक्टर है. जेड करते ही 0 आ जाएगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. 2xy तो 2xy dx करेंगे, तो कैंसिल एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स. नाउ 2 जेड वाई का डी वाई स्क्वायर बाई 2 टू कैंसिल जेड वाई स्क्वायर. अगेन एक्स स्क्वायर डी वाई टू द वाई एक्स स्क्वायर वाई. तो आपका पोटेंशियल यदि 12 यूनिट आ गया है, और भी जो स्पेस कोऑर्डिनेट ये 3/4 पे 3/340, और ये 0 पे कितना होगा आपका 0 हो जाएगा. तो हम लोग जानते हैं वर्क डन 1 to 2 इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1, 1 into 72 यूनिट. ओके.
ये आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कंसीडर कर लेना यार, कहीं डिफरेंशिएशन बाहर थोड़ा हल्ला होने लगा, गली के बाहर आवाज आ जाता होगा, इसमें रिकॉर्ड हो जाता होगा, तो सॉरी उसके लिए। पर देखना थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिए, ठीक है। पर बस कंसेप्ट यही है, तुम पोटेंशियल निकाल लो, उस पॉइंट को पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तुम बड़ा निकाल सकता है। देखो कितना आसान हो गया, तुम इसे इंटीग्रेट करते कितना कॉम्प्लेक्स होता। अब बताओ कि ये सेकंड क्वेश्चन, पूछा कि नेट चार्ज इसमें कितना है। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा इक्वेशंस क्या है स्पेस में, 2xy zx, this is 2zx plus y square, this is the k। ओके, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह स्पेस में दिया हुआ है और एक सेंटर पे 5 मीटर का रेडियस स्फेयर है। इस रेडियस ये आपका स्फेयर है, सेंटर इसका 0 0 है और 0 है। तो बताएं कि इसमें चार्ज कितना है। ओके, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि देखिए आप गौर से EX/Y/Z क्या है, बराबर -x -y -z। यदि आप नेगेटिव कोऑर्डिनेट पुट करके देखें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो ये सेम इक्वेशन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड XYZ और -XYZ पे सेम है। इसका मीनिंग क्या है, इसका फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से 0 पास हो रहा है। यदि देखो XYZ कोऑर्डिनेट ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, मतलब ये डायरेक्शंस मान लो XYZ का, y उस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स कितना पास होगा, 0। फ्लक्स 0 है तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, Q इनक्लोज्ड, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको समझने की चीज है, आप XYZ कोऑर्डिनेट आप किसी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में देखते हैं, आप उसके अपोजिट जस्ट आप नेगेटिव कोऑर्डिनेट कर देते हैं, जस्ट अपोजिट आप किसी कोऑर्डिनेट में होगा, आप 1 और 3rd कोऑर्डिनेट लेते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशंस नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएशंस नहीं होता, जब यूनिफॉर्म होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म जा रहा है तो मतलब वेरिएशंस नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म करता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा चार्ज नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स जो 0 है वो 0 नहीं होता। सेम एक्सप्रेशन है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है, और चार्ज इनवर्स भी 0 हो गया। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और प्रॉब्लम्स।